آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرکب اشاری. مرکب اشاری. پھر آگے ہم پڑھیں گے اس میں اشارہ قریب و بعید، یعنی کہ قریب سے قریب اور بعید سے مطلب دور. اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس میں اشارہ کا استعمال. تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، مرکب اشاری. مرکب اشاری کو پہلے اردو میں دیکھ لیتے ہیں. جس طرح سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ لڑکا، وہ کتاب، یہ دونوں کاریں، وہ دونوں دوست. ٹھیک ہے، اشارہ، وہ دونوں دوست، یہ دونوں کاریں، یہ سب دکانیں، یہ سب دکانیں، اور پھر ہے وہ سب مکان. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اشارہ ہو جاتا ہے یہ اور وہ. اور کیونکہ عربی میں آپ کو پتا ہے کہ دو کے لیے پھر الگ سے لفظ استعمال آتا ہے، تو پھر ہر چیز میں دو کے لیے مثنیٰ جو ہے وہ دو کے لیے الگ سے لفظ استعمال ہوگا. چاہے اشارہ ہوگا اس میں بھی مثنیٰ ہوگا، چاہے اسم ہوگا تو اس میں بھی مثنیٰ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ مثنیٰ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ مستقل رہے گا. اگین آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ مثنیٰ سے مراد مؤنث نہیں ہوتا، مثنیٰ سے مراد دو. جی ماشاءاللہ، آنی کا ساؤنڈ اور آئینی کا ساؤنڈ مثنیٰ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف. جس طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مرکب اشاری، اور اس کے دو پارٹ ہیں. ایک ہوتا ہے اسم اشارہ اور دوسرا مشار الیہ. یہ لڑکا، اس میں پہلے اسم کو کہتے ہیں اسم اشارہ اور دوسرے کو کہتے ہیں مشار الیہ. مشار الیہ یعنی کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی، تو جس طرح سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ لڑکا، یہ کی عربی کیا ہے؟ ہاذا. ہاذا یہ. اور لڑکا کی عربی کیا ہے آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ؟ ولدن. ہاذا ولدن. لیکن یہاں پہ جب یہ مرکب اشاری میں استعمال ہوگا تو یہ نکرہ نہیں ہوگا، یہ معرفہ استعمال ہوگا خاص. تو بس یہ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو مشار الیہ ہوگا، یعنی کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہوگا، وہ ہمیشہ ال والا ہوگا، معرف باللام ہوگا، ال کے ساتھ ہوگا. اگر اس میں اشارہ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد ال والا اسم نظر آ رہا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مرکب اشاری ہے. ولدن. ولدن جو ہے نا، جو بے بنیادی طور پر تو جو ہے وہ منصرف ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب ال لگ جاتا ہے تو جس اسم کے ساتھ بھی ال لگ جاتا ہے تو وہ پھر غیر منصرف ہو جاتا ہے. ال کی وجہ سے تنوین غائب ہو جاتی ہے، جب تنوین غائب ہوگی تو وہ منصرف نہیں رہے گا، غیر منصرف ہوگا. ماشاءاللہ، اچھا پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، تو ہاذل ولد، یہ لڑکا، ہاذل ولد یہ لڑکا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. مرکب اشاری کی پہچان. مرکب اشاری کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اشارہ پلس مشار الیہ، دو لفظ ہوں گے. پہلے اس میں اشارہ آ رہا ہوگا، اس کے بعد مشار الیہ، اور جس کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا اسے مشار الیہ کہتے ہیں. اور مشار الیہ ہمیشہ معرف باللام ہوگا، یعنی کہ ال اس کے شروع میں لگا ہوا ہوگا. اگر اس میں اشارہ ہے اور اس کے بعد جو اسم تو ہے لیکن ال نہیں لگا ہوا اس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ مرکب اشاری نہیں ہے. بس اتنی سی بات یاد رکھیں تو مشار یہ آپ کا کہیں بھی نہیں جائے گا. تو اب جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اس میں سے پہلی چیز ہے جنس. جنس. جنس کسے کہتے ہیں؟ مذکر یا مؤنث. تو یہاں بھی جنس کا خیال رکھنا ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو اگر تو وہ مذکر ہے تو پھر آپ کا جو اس میں اشارہ بھی مرکب مذکر آئے گا اور مشار الیہ بھی مذکر آئے گا. ٹھیک ہے جی، تو جنس میں مذکر اور مؤنث دونوں کی میچنگ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کیونکہ عرب کے اندر جو ہے نا ہر چیز کا خیال، اردو کے اندر کوئی خیال نہیں ہے. مذکر ہے، مؤنث ہے، ایک ہے، دو ہیں، بہت ہیں، بس یہ اور وہ ختم. صحیح ہے نا؟ تو عرب کے اندر ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی ابہام ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جنت کی زبان، کلام اللہ، اللہ کا کلام. ٹھیک ہے جی، تو اشارہ. اب اشارہ جو ہے وہ قریب کا بھی ہو سکتا ہے اور اشارہ دور کا بھی ہو سکتا ہے. جب قریب کی طرف اشارہ کریں گے تو قریب والا اشارہ لائیں گے، اور جب دور کی طرف اشارہ کریں گے تو دور والا لائیں گے. جس طرح قریب کے لیے اردو میں یہ، ٹھیک ہے نا، اور دور کے لیے وہ. تو عربی میں قریب کے لیے ہاذا اور دور کے لیے ذالکا. ہوا جو ہے نا وہ کسی اسم علم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا فرق ہے. اردو میں بھی فرق ہے لیکن ہمیں نہیں ہے اندازہ، کیونکہ وہاں پہ جنس عدد کا خیال نہیں رکھا جاتا نا، تو اس وجہ سے ہمیں اس کا فرق نہیں محسوس کر سکتے. ٹھیک ہے جی، تو قریب اور دور، یعنی کہ اس میں اشارہ قریب کی چیز کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس میں اشارہ بھی قریب کا، دور کی چیز کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے تو اس میں اشارہ بھی دور کا. اس کے بعد تیسری چیز ہے عدد. عدد آپ کو پتہ ہے واحد، مثنیٰ اور جمع. یعنی کہ اگر ایک کی طرف کیا جائے گا
تو اس میں اشارہ بھی واحد لایا جائے گا. دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو اس میں اشارہ بھی مثنیٰ لایا جائے گا. دو سے زائد جمع کے لیے اشارہ کیا جائے گا تو اس میں اشارہ بھی جمع کا لایا جائے گا. تو عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز میں وہ پورا جو ہے نا وہ جنس عدد وسعت ہر چیز کا وہ خیال رکھتے ہیں. پوری عربی میں نارمل تو آپ پڑھتے ہیں نا کبھی اندازہ نہیں ہوتا نا, لیکن عرب کے اندر یہ جو ہے نا وہ اور کلام اللہ بھی ہے تو ہر چیز اتنی واضح طور پر بتا دی گئی ہے تاکہ کسی کے اندر کسی بھی قسم کا ابہام نہ رہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں یہ مسئلے ہیں. یہ اب ہماری بدقسمتی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی, تو چلتے ہیں آگے. اس میں اشارہ قریب و بعید. تو اب پہلے ہم اس میں اشارہ جان لیں کہ یہ اس میں اشارہ قریب والے کون سے ہیں, بعید والے کون سے ہیں, تاکہ اس میں اشارہ کو ہم ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر ہمیں استعمال کرنا آسان ہوگا. تو پہلے اس میں اشارہ قریب و بعید کا دیکھ لیتے ہیں. تو جس طرح سے میں نے بتایا کہ عدد واحد مثنیٰ جمع کے لیے الگ الگ ہوتا ہے, مذکر کے لیے الگ اشارے ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے الگ اشارے ہوتے ہیں. تو عدد میں واحد آئیں گے, واحد مذکر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاذا. ہاذا کا مطلب یہ, ہاذا یہ مذکر. ٹھیک ہے جی. اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذہی, ہاذہی. ٹھیک ہے جی. مذکر کے لیے ہاذا اور مؤنث کے لیے ہاذہی. مثنیٰ کیا ہوتا ہے ہاذا سے, یہ وہی طریقہ ہے جو اسم کا طریقہ ہے. کیا کرتے تھے ہم, آخری حرف پہ زبر, آلریڈی زبر ہے, اور اس کے بعد الف اور نون زیر کا اضافہ کر دیں گے تو کیا بنے ہاذانی, ہاذانی, آنی, ہاذانی. آنی آ گیا دو, جب آنی آ گیا تو سمجھ لیں کہ مثنیٰ ہے, دو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے مؤنث کے لیے ہاتانی, ہاذانی مذکر کے لیے, دو مذکر کے لیے, اور ہاتانی دو مؤنث کے لیے. تو یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ ابھی اس میں اشارہ قریب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, قریب کی بات ہو رہی ہے. اب مثنیٰ ہو گیا ہاذانی دو مذکر اور ہاتانی دو مؤنث. اب آئے گا جمع. تو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاؤلائی, جمع کے لیے ہاؤلائی, اور مؤنث کے لیے بھی ہاؤلائی. جمع دونوں کا سیم ہے, مذکر ہوں مؤنث ہوں ملے جلے ہوں, بس وہ ہاؤلائی آ جائے گا تو مذکر ہے تو بھی ہاؤلائی, مؤنث ہے تو بھی ہاؤلائی, مذکر مؤنث ملے جلے ہیں تو بھی ہاؤلائی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جمع کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں ہم اس میں اشارہ بعید کی طرف, دور والے کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالک, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم, ذالک الکتاب وہ کتاب. ٹھیک ہے جی. ذالک وہ. اچھا جی. تو مؤنث کے لیے تلکا, تلکا. ٹھیک ہے جی. مذکر کے لیے اب اس میں اشارہ بعید دور کی بات ہو رہی ہے. مذکر کے لیے ذالک وہ, اور مؤنث کے لیے تلکا. ٹھیک ہے جی. مؤنث کے لیے تلکا. اچھا جی. اب مثنیٰ کے لیے رانیکا, رانیکا, اور تانیکا. رال سے زانیکا اور تا سے تانیکا, تلکا سے تانیکا. اچھا جی. تو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اولائکا, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. دور کے جمع کے لیے, دور کے لیے اور جمع وہ سب کیا ہیں, اولئک علی ھدی من ربہم, وہ سب کیا ہیں اپنے رب کی طرف سے کس چیز کے اوپر ہیں, ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون, اور وہ سب جو ہیں کامیاب ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جمع کے لیے بھی اولئک. تو جمع کے لیے آپ نے دیکھا اس میں اشارہ قریب میں بھی ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے, اور جمع اشارہ بعید میں بھی ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اولئک. اشارہ قریب میں جمع ہاؤلائی, اشارہ بعید میں جمع اولئک. ٹھیک ہے جی. تو ایک بار یہاں پہ دوبارہ میں آپ کو میننگ یاد کرا دیتا ہوں, دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کو میننگ جو ہے نا وہ اچھے سے یاد ہو جائے. مذکر کی بات ہو رہی ہے, اشارہ قریب کی بات ہو رہی ہے. ہاذا یہ ایک مذکر, اور ہاذہی یہ ایک مؤنث. ہاذانی یہ دو مذکر, اور ہاتانی یہ دو مؤنث. ہاؤلائی, ہاؤلائی وہ سب مذکر مؤنث. تو اب اس میں اشارہ بعید کی طرف آتے ہیں. دور کے لیے اشارہ مذکر کے لیے ذالک, دور کے لیے ذالک وہ ایک مذکر, اور تلکا وہ ایک مؤنث. دو کے لیے مذکر, دو مذکر ذانکا, ذالک سے ذانکا, اور تلکا سے تانیکا. ٹھیک ہے جی. اور یہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں, مثنیٰ جو ہے بہت کم استعمال ہوئے ہیں.
तो इसी वजह से जब बेसिक कोर्स कराया जाता है तो बाज़ औक़ात मुसन्ना गायबी कर दिया जाता है, वो कहते हैं कि अभी इसको छोड़ दें, मुश्किल भी है थोड़ा सा, ठीक है जी। और जमा के लिए उलाइका वो सब मुज़क्कर और उलाइका वो सब मुन्नस। मुज़क्कर मुन्नस के लिए जो है ना वो सेम ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद जो इसम आया होगा उलाइका के बाद जो इसम आ रहा होगा तो उसी से पता चल जाएगा कि ये मुज़क्कर वाला इसम है या मुन्नस वाला है। कब इशारी, अब ये हमने पढ़ लिया तो अब इसको प्रॉपर जो है ना रिव्यू कर लेते हैं कि जो जो हमने पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी और इसको हम देख लेते हैं, ठीक है जी। तो दो अल्फाज का मजमुआ जिसमें एक इसम इशारा और दूसरा मुशारुन इलैह कहलाता है। मुशारुन इलैह जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए, ठीक है जी। तो इसमें इशारा की तारीफ क्या होगी, वो लफ्ज जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह हाजा, हाज़िही, ज़ालिका, उलाइका, ठीक है। और मुशारुन इलैह, चलिए जिस तरह से यहाँ पे क्या है, हाज़ल बैतु ये घर, हाजा और फिर बैत, बैत कहते हैं घर को। तो अब यहाँ पे हाजा के बाद अल वाला इसम है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसम इशारा है। हाजा इसम इशारा है और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो अल के साथ है, तो हाजल बैत, हाजा ये, अल बैत घर, ये घर, ठीक है जी। इसका तर्जुमा क्या हो गया, ये घर। तर्जुमा तरतीब क्या होगी, सेम सीधी होगी, बस जिस तरह लफ्ज लिखा होगा उसके नीचे उसकी उर्दू लिखते जाएंगे, तो आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह मुरक्कब तौसीफी में हमने किया था। तो यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज चलेगा, जैसी अरबी है वैसी उसकी उर्दू में ट्रांसलेट करना है हमने, ठीक है जी। और अगर मुन्नस होगा तो हाज़िही सय्यारतु। अब देखिए सय्यारतु आपको नजर आ रहा है, सय्यारतु मुज़क्कर है या मुन्नस है, मुन्नस है, कैसे पहचाना, गोलता की वजह से पहचाना, ठीक है ना। और अगर बाज़ औक़ात इससे ना पहचाना जाए तो तर्जमे से पहचाना जाता है। तो सय्यारतु का मतलब कार होता है, गोलता, गोलता से पहचान लिया, बस गोलता आ गया, मुन्नस की अलामत हो गई तो गोलता। तो हाज़िही सय्यारतु इसका ये कार। तो अब देखें हाजा मुज़क्कर, अलबैत मुज़क्कर, हाज़िही मुन्नस का इशारा, करीब का, अस्सय्यारतु मुन्नस, इशारा मुज़क्कर तो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो भी मुज़क्कर, हाज़िही मुन्नस तो अस्सय्यारतु भी मुन्नस। हाँ वो मिला के पढ़ेंगे तो, हाँ ऊपर देखें हाज़ल बैतु लाम पढ़ा जा रहा है और नीचे हाज़िही सय्यारा तो नहीं पढ़ा जा रहा, तो अलबैत कमरी हो गया और यहाँ पे जो है ना शमसी हो गया। बैत बा कमरी हर्फ हो गया और सीन शमसी हर्फ हो गया। हाज़ल बैत और जी जी वो आएंगे, लेकिन उसकी हरकत उड़ जाएगी। एक तो हाजा का अलिफ है ना और दूसरा अलबैत का है, लेकिन अलबैत पे जो हरकत होती है वो मिलाने की सूरत में उसकी हरकत गिर गई, ठीक है जी। अच्छा जी आगे चलें अब मुशारुन इलैह की तरफ। मुशारुन इलैह इसमें इशारा के जरिए जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं, जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए, ठीक है जी। लेकिन वो इसम इशारा के साथ इशारा किया जाएगा, तो ये नहीं कि आप कहेंगे ठीक है ना मैंने इशारा करूं तो बोलना भी पड़ेगा, इसमें इशारा को भी लाजमी लाना पड़ेगा, जिस तरह से उर्दू में भी हम लाते हैं, ठीक है जी। अब आते एक और मिसाल देख लेते हैं, ज़ालिकल किताब, कौन तर्जुमा करेगा इसका, वो किताब। ज़ालिका मुज़क्कर का इशारा है या मुन्नस का इशारा है, मुज़क्कर का इशारा है। और ज़ालिका इशारा करीब है या इशारा बईद है, इशारा बईद है, ठीक है। और कौन सा है ये, वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, वाहिद है, ठीक है, क्योंकि अल किताब भी वाहिद नजर आ रहा है तो ज़ालिका भी वाहिद है, माशाल्लाह, ठीक है जी। तो वो किताब, तो यहाँ पे आपको एक समझ में आ गया ओवरव्यू सब। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ये इसमें इशारा वाला बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है। अगर वही इसम के मुतालिक जो चार चीजें आपकी अच्छी हैं, ठीक है ना, तो हर चीज आसान है। उसी में कमी होगी तो यहाँ पहचानने में कमी होगी। मुरक्कब इशारी, अदद, मुज़क्कर मुन्नस, वाहिद, हादल मुस्लिमु, मुज़क्कर क्या है, हादल मुस्लिमु, जी तर्जुमा करेंगे आप। हाँ हाजल मुस्लिम, ये मुसलमान, ये एक मुसलमान, ये मुसलमान यानी कि एक मुसलमान की बात हो रही है, ठीक है जी। पर अल लगेगा तो गैर मुनसिफ हो जाएगा ना, खत्म बात होगी। तो अब यहाँ पे बार बार मुनसिफ गैर मुनसिफ की चक्कर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुशारुन इलैह में लगना ही अल है, ठीक है ना। जब अल लग गया तो वो गैर मुनसिफ ही हो गया। अच्छा जी हाजल मुस्लिम, अब इसका मोन्नस कौन बनाएगा, बच्चे मोन्नस बनाओगे इसकी। हाजा की मोन्नस क्या है, हाजा मुजक्कर के लिए क्या है, हाजिही, हाजिहिल मुस्लिम, अल मुस्लिमों की जमा अल मुस्लिमतु,
हाज़िहिल मुस्लिमात, ठीक है जी, हाज़िहिल मुस्लिमात। मुज़क्कर इसम है तो इशारा भी मुज़क्कर, मोनस इसम है तो इशारा भी मोनस। एक मुसलमान मुज़क्कर है तो वाहिद का इशारा, एक मुसलमान औरत है तो वाहिद का इशारा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं मुसन्ना की तरफ। तो मुसन्ना इसका कौन बनाएगा? हाज़ल मुस्लिमों का बनाएंगे आप भी। हाज़ा की मुसन्ना क्या है? हाज़ा मुज़क्कर का मुसन्ना, मुसन्ना दो। हाज़ानिल मुस्ली, देखें रफा हालत है, नसब जर नहीं है, ठीक है। रफ हालतों को छोड़ दे, हालत जो भी अब हम पढ़ेंगे वो जब हालत का जिक्र किया जाएगा स्पेसिफिक तो आपने उसकी हालत चेंज कर दी है। हाज़ानिल, देखें मुस्लिमों को आप जो है ना नकरा नहीं करे ना, अल मारफा करे ना, मुशारुन इलैह मारफा रहेगा, अल वाला अल, अल मुशारुन इलैह को अगर अल हटा देंगे तो फिर वो मुशारुन इलैह नहीं रहेगा। हाँ, तो मुस्लिमों को भी तो मुसन्ना करें। हाँ, हाज़ानिल मुस्लिमानी, माशाल्लाह, हाज़ानिल मुस्लिमानी। जब इसम इशारा मुसन्ना आ गया तो जिस चीज की तरफ इशारा किया जाएंगे वो भी दो हो जाएंगे, आसान सी बात। ठीक है, ये प्रैक्टिस यहाँ पे क्यों यहाँ पे कराई जाती है? ताकि आप करके आपको जो कॉन्सेप्ट में जो रह जाएगा वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हाजा की मुसन्ना है हाजानी और अल मुस्लिमों की जमा है अल मुस्लिमानी, हाजानिल मुस्लिमानी। ठीक है जी, अब आना है हमने इसके मुसन्ना मुअन्नस की तरफ। तो हाजे ही करीब के लिए क्या है? वाहिद। तो हाजे ही का मुसन्ना क्या है? हातानी, माशाल्लाह, हातानी आगे मुस्लिमतानी, हातानिल मुस्लिमतानी, हातानिल मुस्लिमतानी, ये दो मुसलमान औरतें, ये दो मुसलमान औरतें, माशाल्लाह। ठीक है जी, अब आते हैं जमा की तरफ। ठीक है जी, तो हाजा की जमा क्या थी? आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा आपने? हाउलाई, हाउलाई और अल मुस्लिमों की जमा रफा पे रहो ना, आप नसब जर में क्यों पहुंच जाते हो? मैंने आपसे कहा नसब जर को छोड़ दो, जब मैं नसब जर इस्तेमाल करूंगा तो आपको बताऊंगा कि आप इसकी नसब जर बताओ। हाँ माशाल्लाह, हाउलाइल मुस्लिमूना, तो उसको भी जमा कर देना, उसको भी जमा कर देना, खत्म। हाउलाइल मुस्लिमूना, माशाल्लाह। ठीक है जी, और मोनस का क्या हो जाएगा? मुस्लिमत, मुस्लिमतुन एक मोनस है ना, और मुस्लिमतानी दो मोनस हो गई। मुस्लिमा तू, ती क्यों करते हो भाई? वो रफी रहेगा ना, मैंने आपसे कहा ना कि एराब उसका रफी रहेगा, आप एराब में अटके हुए हो। देखिए अभी तो पहली स्लाइड है ना, तो हम यहाँ पे तो डायरेक्ट इधर उधर नहीं चले जाएंगे ना, यहाँ तो बेसिक सारा देखना है। एराब जब हम एराब इस्तेमाल करूंगा आपको बताऊंगा कि आप इसका नस्ब बनाओ, फिर आप इस्तेमाल करना, वरना जितनी भी प्रैक्टिस होगी, जिस टॉपिक की प्रैक्टिस होगी वो रफा हालत होगी। जब तक मनसूब मजरूर की बात ना करूं आपने परेशान होना ही नहीं है। हाँ, जब बोलूंगा तो फिर आपको बोलूंगा, जब मैंने वहां पे टॉपिक चेंज होगा तो बोलूंगा कि अब आज मनसूब और मजरूर की तरफ। तो यहाँ पे भी हाउलाई मोनस के लिए भी हाउलाई इस्तेमाल होता है, और अल मुस्लिमातु के जमा है अल मुस्लिमातु, हाउलाइल मुस्लिमातु। ठीक है जी, माशाल्लाह। तो ये सब मुसलमान औरतें। अब हम आते हैं इशारा बईद की तरफ। ठीक है जी, तो हाजल मुस्लिमों का इशारा बईद क्या हो जाएगा? एक मुसलमान के लिए वो वो एक मुसलमान, वो मुसलमान, पूरा बोलें, जालिकल मुस्लिम। ठीक है जी, जालिकल मुस्लिम, जालिकल मुस्लिम। ठीक है जी, जालिकल मुस्लिम, जालिका वो, हाजा ये, जालिका वो, दूर, दूर की तरफ इशारा करते हैं ना, करीब के लिए हम उर्दू में क्या कहते हैं? ये, उसकी अरबी क्या होगी? हाजा, और दूर के लिए जालिका वो। ठीक है जी, जालिकल मुस्लिम, वो एक मुसलमान या वो मुसलमान। ठीक है जी, अब इसकी मुसन्ना मोनस बनाएं, जालिकल, तिलकल मुस्लिम, तिलकल मुस्लिमातु, माशाल्लाह, तिलकल मुस्लिमातु। ठीक है जी, जालिकल मुस्लिम, वो एक मुसलमान, तिलकल मुस्लिमातु, वो एक मुसलमान औरत, मोनस। ठीक है जी, इसका मुसन्ना कौन करेगा जी? जी बेटा आपने करना है। जालिका की मुसन्ना क्या है? जानिका, माशाल्लाह, जानिकल
मुजक्कर मुजक्कर है, देखिए ये वाली लाइन मुजक्कर की है, लेफ्ट वाली साइड मुअन्नस की है। तो अभी हम चल रहे हैं, वाहिद हमने कर लिया है, तो वाहिद को अब हमने मुसन्ना बनाना है। ठीक है जी। तो ज़ालिका का मुसन्ना क्या था? रानी का। और अल मुस्लिम का मुसन्ना क्या है? अल मुस्लिमानी। तो क्या बनेगा? ज़ालिकल मुस्लिमान, ज़ानिकल मुस्लिमान। ठीक है जी, माशाल्लाह। तो अब इसका मुअन्नस कौन करेगा? तिलका, तिलका की मुअन्नस तानिकल, तानिकल मुस्लिमतानी। ठीक है जी, इसकी भी मुअन्नस लेके आ जाएंगे और साथ में इसकी भी मुअन्नस लेके आ जाएंगे, तानिकल मुस्लिमतानी। ठीक है जी, वो दो मुसलमान औरतें। ठीक है जी। अब इसकी जमा कौन करेगा जी? जी, ज़ालिका की जमा क्या है? उलाइकल और मुस्लिमूना, उलाइकल मुस्लिमूना, उलाइका मुस्लिम, उलाइकल मुस्लिमूना, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और यहाँ पे उलाइकल मुस्लिमात, उलाइकल मुस्लिमातु। ठीक है जी, आगे समझ में आपको? एक बार रिवाइज कर लूं दोबारा ताकि जल्दी से हम करते हैं। जी हाँ, आप एक एक पढ़ते जाएं ताकि हम स्पीड से कर लें, तो रिव्यू भी हो जाए। जी हाँ जी, तर्जुमा करते हैं। हाजल मुस्लिमु, ये एक मुसलमान। हाजिल मुस्लिमतु, ये एक मुसलमान मुअन्नस या औरत। जी, हाजानिल मुस्लिमानी, ये दो मुसलमान मुजक्कर। हातानिल मुस्लिमतानी, ये दो मुसलमान औरतें। जी, हाउलाइल मुस्लिमूना, जी सब जमा, सब ये सब मुसलमान। ठीक है जी। और हाउलाइल मुस्लिमाती, मुस्लिमातु, ये सब मुसलमान औरतें। ठीक है जी। ज़ालिकल मुस्लिमु, ज़ालिकल मुस्लिमु, वो एक मुसलमान, माशाल्लाह। तिलकल मुस्लिमतु, वो एक मुसलमान औरत, माशाल्लाह। जी, रानिकल मुस्लिमु, जी वो दो मुसलमान मुजक्कर। ठीक है जी। तानिकल मुस्लिमतानी, वो दो मुसलमान औरतें। जी, उलाइकल मुस्लिमूना, वो सब मुजक्कर मुसलमान। ठीक है जी। उलाइकल मुस्लिमातु, वो सब मुसलमान औरतें। जी, अब यहाँ पे एक इसम आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, एक स्लाइड और प्रैक्टिस कर लेते हैं मुख्तलिफ इस्मा की, ताकि जो है मजीद पुख्ता हो जाए। हाजल वलदू, हाजा ये, और अल वलदू लड़का। हाजल वलदू, ये लड़का। तो इसकी जो है ना वो इसकी मोनस क्या हो जाएगी? हाजिल बिन्तु, माशाल्लाह। तो ये लड़की। ठीक है जी, ये लड़की। हाजल वलदू और हाजिल बिन्तु। तो देखिए, मुजक्कर के साथ वलद लड़का आ गया और हाजिही मोनस के साथ बिन्त लड़की आ गई। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिन्त के माना दो इस्तेमाल किया जाता है, बेटी भी इस्तेमाल किया जाता है और लड़की भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब वलद लड़के के मुकाबले में लाया जाएगा तो हमेशा तर्जुमा लड़की किया जाएगा। लड़का लड़की करते हैं ना, लड़का बेटी तो नहीं बोलते ना, लड़का लड़की, बेटा बेटी ऐसे बोलते हैं ना। तो जब बेटा होगा तो इस बिन्त का तर्जुमा बेटी हो जाएगा, और जब उसके सामने वलद लड़का होगा तो बिन्त का तर्जुमा फिर क्या हो जाएगा? लड़की। ठीक है जी, चलिए माशाल्लाह। मुसन्ना बनाए इसका जी, हाजल वलदू का मुसन्ना। जमा की बात अभी मुजक्कर, देखें ऐसे देखा करें, यहाँ मुजक्कर वाला स्लाइड है और ये लेफ्ट साइड पे मुअन्नस की है। तो मुजक्कर हाजल वलदू का मुसन्ना बनाए। अब हाजानिल वलदानी, हाजानिल वलदानी, हाजा का मुसन्ना हाजानी, अल वलदू का मुसन्ना अल वलदानी। ठीक है जी। हाजानिल वलदानी, ये दो मुजक्कर लड़के। ठीक है जी। तो आगे इसका मुअन्नस करें जी। हादिही है, हादिही का मुसन्ना मुअन्नस का हातानी, हातानी, बिन बिनतानी, हाँ बिनतानी, हातानिल बिनतानी, हातानिल बिनतानी। ये पता है होता क्या है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आते आते भी जो है ना वो जुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। तो अब ये स्लाइड जो जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, या आपकी बुक्स पे भी दी हुई है, तो आपने इसको रख के जो है ना 2-3 बार आपने पढ़ना है, तो वो जुबान की फ्लुएंसी जो है ना वो आपकी बेहतर हो जाएगी। तो जुबान की फ्लुएंसी बेहतर हो जाएगी तो आपको फिर वो ये जो आनी ऊना ईना के साउंड है ना, ये भी आपकी जुबान पे बड़े अच्छे हो जाएंगे। फिर अदा करते हुए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरू में यही होता है कि जाहिर सी बात है वो प्रैक्टिस में नहीं है, तो फिर थोड़ा सा परेशानी होती है। ठीक है जी। और बंदा सोचता है कि ये शायद अरबी मुश्किल है, अरबी मुश्किल नहीं है, हम प्रैक्टिस ही नहीं की तो मुश्किल ही होगी ना। आप सोचे ना कि 10 साल मैट्रिक में और 2 साल कम से कम
3 4 साल भी लगते हैं, चलो कम से कम 2 साल प्रेप में लगाएं, तो 12 साल पढ़ने के बाद भी बच्चे को अंग्रेजी नहीं आ रही होती, तो इसका क्या मतलब है? जो प्राइवेट में भी पढ़ते हैं ना, अगर उनका घर का माहौल वो थोड़ा सा इंग्लिश स्पोकन का होता है, तो उनके बच्चे इंग्लिश बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हाजानिल वलदानी के जमा हा उलाई जमा हो गया, हाजा की जमा हा उलाई हो गया, अल वलदु की जमा उर्दू में भी इस्तेमाल, औलाद उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, वलद लड़का, औलाद उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना। अब वलद देखिए उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, औलाद उर्दू में इस्तेमाल होता है, सही है ना। तो हा उलाइल औलादू, हा उलाइल औलादू, ठीक है जी। और इसका मोनस क्या हो जाएगा? हा उलाइल हा उलाइल, हाँ ये तो नहीं, औलाद क्यों रहेगा, मोनस आएगी ना। बेंत की जमा बनाए ना, बेंत की जमा बनाए ना, अल बिंतु की जमा अल अल मदरसा तो लिल बनीना वल लिल लिल बनीना वलिल बनात, बनात बेंतुन की जमा बनात, ये पढ़ा करे ना, मदरसा हर मदरसे के बाहर लिखा होता है, लिल बनीना वलिल बनात, बनात बेंत बनात, हाउलाइल बनातु, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं हम दूर के इशारे की तरफ। जालिकल वलदु, दूर का इशारा, अल वलदु वलद ही रहेगा, जालिका इशारा सिर्फ वो हो जाएगा, ठीक है जी। तो मोनस में क्या हो जाएगा? मोनस में क्या हो जाएगा? जालिका की मोनस तिलका, तिलकल तिलकल बिंतु, माशाल्लाह, तिलकल बिनकल वलदानी, तो इसका मोनस क्या बनेगा? तानिकल बिनतानी, तानिकल बिनतानी, माशाल्लाह, ठीक है जी। अब इसकी जमा कौन करेगा? उलाइकल औलादु, उलाइकल औलादु, और उलाइकल बनातु, माशाल्लाह, उलाइकल बनातु, ठीक है जी। अब मुरक्कब इशारी आपने पहचानना है जी, ये मुरक्कब इशारी है कि नहीं है? ये मुरक्कब इशारी है कि नहीं है? नहीं है, समझ साहब वो तो कह रहे हैं नहीं है। बात जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है उसके ऊपर अल नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से ये मुरक्कब इशारी नहीं है, ठीक है जी। आगे समझ में? अच्छा, तो अब अगर हादा किताब मुरक्कब इशारी नहीं है, तो हादा किताब को मुरक्कब इशारी बनाए, हादल किताबू, तो समझ भाई, अब देखें फर्क आया सामने, अब पता चला कि वाकई ये मुरक्कब इशारी जो बना, क्या फर्क है देखें। अल मुशारुन इलैह पे जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी कि किताब, उस पे अल लगा हुआ है, इस वजह से ये मुरक्कब इशारी है। और हादा किताब में किताब पे अल नहीं लगा हुआ, इस वजह से वो मुरक्कब इशारी नहीं है, ठीक है जी। हादा किताब उनका तर्जुमा क्या बनेगा रियान भाई? ये हाँ, ये एक किताब है, या ये किताब है, हादा किताबुन ये किताब है, या ये एक किताब है, ये दोनों तर्जुमे हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हादा अल ना लगने की वजह से ये तर्जुमे में फर्क आया, और इसमें मुरक्कब इशारी हादल किताबों का क्या तर्जुमा होगा? ये किताब, ये किताब, ये फर्क पड़ेगा, ठीक है। जो अल किताब है उसकी तरफ क्योंकि अल नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से मुरक्कब इशारी नहीं होगा, अल लगा होगा तभी मुरक्कब इशारी बनेगा, वरना हादा किताब का तर्जुमा हो जाएगा ये किताब है, ये जुमला इसमें बन जाएगा। और यहाँ पे हादल किताब, क्योंकि जिसकी तरफ इसमें इशारा है, इसमें इशारा जिसकी तरफ किया जा रहा है उस पर अल लगा हुआ है, तो अब ये मुरक्कब इशारी हो गया। इतनी आसानी, मोटी सी बात याद रखने बस, इसमें इशारा तो है लेकिन जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उस पर अल लगा हुआ है, लगा हुआ है तो मुरक्कब इशारी है, नहीं लगा हुआ तो मुरक्कब इशारी नहीं है। वो इस केस में जो हादा किताबुन है, इस केस में फिर ये जुमला इसमें हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम ये जानते हैं कि फिर इन दोनों में असल में फर्क क्या है। तो एक तर्जमे का फर्क तो बेसिकली दिखा दिया मैंने आपको, तो थोड़ा सा और मजीद भी इसको एनालाइज करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए मुरक्कब इशारी और जुमला इस्मिया में फर्क। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हादल किताबु, तो हादल किताबु मुरक्कब इशारी है, हादल किताबु मुरक्कब इशारी है। तो हादा जो है उसके अंदर वो इस्मुल इशारा कहलाएगा, इस्मुल इशारा यानी कि इशारा करने वाला इस्म, तो वो मारफा होना चाहिए,
तो यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें कि जो इसमें इशारा है, करीब के हैं, दूर के हैं, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, मुजक्कर है, मोनस है, कुछ भी है, वो सारे के सारे मारफा हैं। क्या है? मारफा है। ठीक है जी। तो अब जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, वो मुअर्रफ बिल लाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुअर्रफ बिल लाम, यानी कि उसके ऊपर अल लगा होना चाहिए, तो ये जाके बनेगा मुरक्कब इशारी, और इसका तर्जमा होगा ये किताब। ठीक है जी। अब आते हैं हाजा किताबुन की तरफ। तो हाजा किताबुन ये जुमला इस्मिया कहलाता है। इसमें हाजा तो वो मुब्तदा ही कहला, इसमें क्योंकि ये जुमला इस्मिया बन जाता है, तो ये इसमें इशारा तो है, लेकिन ये इसमें इशारा जुमला इस्मिया के अंदर इसका टेसस मुब्तदा, जिस इसम से इब्तिदा हो रही हो, तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। जुमला इस्मिया में हाजा मुब्तदा हो जाएगा, मुब्तदा हो जाएगा, और मारफा तो दोनों सूरतों में, इसमें मुरक्कब इशारे में भी मारफा रहेगा, जुमला इस्मिया में भी मारफा रहेगा, क्योंकि उसका स्टेटस तो अपना है। तो किताबुन यहाँ पे क्या कहला जाएगी? खबर कहला जाएगी, और किताबुन यहाँ पे नकिरा आ रही है, और मुशारुन इलैह में किताब क्या आ रही है? मारफा आ रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बुनियादी फर्क है। जब मुशारुन इलैह, अगर आपको लग रहा है कि मुरक्कब इशारी है, और फिर आपने देखा कि इसमें इशारा तो है, लेकिन इसमें इशारे के बाद जिस इसम की तरफ इशारा किया जा रहा है उसे मुशारुन इलैह कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर अल नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये अब मुरक्कब इशारी नहीं है, ये अब जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो अब इसको जुमला इस्मिया के हिसाब से देखेंगे, जो हम पिछली 2 क्लास पहले पढ़ चुके हैं कि जुमला इस्मिया 2 अस्मा का मजमुआ होता है। उसमें पहला इसम मुब्तदा कहलाता है, यानी कि जिस इसम से इब्तिदा की जा रही हो, और दूसरा इसम उसकी खबर कहलाती है। एक इसम और उसके बारे में कोई खबर दी जा रही है। हाजा ये इशारा करके बताया जा रहा है कि इसकी बात कर रहा हूँ, और बता दिया कि किताबुन ये एक किताब है या ये किताब है, दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। तो ये बेसिकली बारीक सा फर्क है मुरक्कब इशारी और जुमला इस्मिया में। जुमला इस्मिया कब? जब जुमला इस्मिया में हाजा, इसमें इशारा इस्तेमाल हो गया, तो फिर फर्क जो है ना वो सिर्फ किससे पता चलेगा? मुशारुन इलैह से। आगे समझ में जी? क्लियर है? आगे चलें, थोड़ी प्रैक्टिस करें। हाजा कलमुन, क्या तर्जुमा होगा? ये कलम है। इसको अब वो मुरक्कब इशारी नहीं है ना ये, तो अब इसको मुरक्कब इशारी में कन्वर्ट करें। हाजल कलम, ठीक है, हाजल कलम, माशाल्लाह, हाजल कलम, अब ये मुरक्कब इशारी बन गया। ठीक है जी। अब हमने पढ़ा था हाजानी रजुलानी, हाजानी 2 मुसन्ना हो गया, रजुलाने 2, रजुलन एक मुज़क्कर एक मर्द, और रजुलाने 2 मर्द, तो ये 2 मर्द हैं। ठीक है। अब इसका मुरक्कब इशारी क्या बनेगा? हादानिर रजुलाने, माशाल्लाह, अल लग जाएगा बस। क्या लगेगा? अल लग जाएगा बस, क्योंकि हादानी तो है, वो तो अपना सेट जैसी है शक्ल है उसकी वैसी रहेगी। मुफ्त जुमला इस्मिया में भी वही शक्ल रहेगी, और मुरक्कब इशारी में भी उसकी शक्ल वही रहेगी। चेंज कहाँ पे आएगा? सेकंड की तरफ, इसमें इशारा के बाद जो इसम होगा उसकी तरफ देखना है, अल लगाना है बस। उसमें अल नहीं लगा हुआ, अल लगा दो तो वो मुशारुन इलैह बन जाएगा। हाज़ानिर रजुलानी, अल लगा दिया बस। ठीक है जी। ये 2 मर्द। अच्छा जी, आगे आ गया हादिही फाकिहतुन। फाकिहतुन कहते हैं खजूर को, मेवे को भी इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब इसको मुरक्कब इशारी बनाए, हादिही, हादिहिल फाकिहतु, माशाल्लाह। अब क्या हुआ? क्या फाकिहतुन था, आपने अल लगा दिया तो फाकिहतु हो गया, क्योंकि जब अल आया तो तनवीन हट जाएगी और एक पेश रह जाएगी। तो हादिही फाकिहतुन, ठीक है, ये मेवा है, और हादिहिल फाकिहतु ये मेवा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे तिलका जन्नतुन, तिलका जन्नतुन, तिलका का मतलब वो मुजक्कर या मुन्नस? मुजक्कर। तिलका, तिलका के बाद देखें क्या है। अच्छा, तिलका के बाद देख लें। हाँ, तो आप जो है ना, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो ना, तो तिलका के बाद वाला इस्म को देख लें, तो वो अगर आपको मुजक्कर नजर आ रहा है, बोलता आ गई ना जन्नतुन, मोनस हो गया, तो इसका मतलब है कि अगर जहन से अभी तो लर्निंग प्रोसेस में है ना, तो ये गलतियां होंगी। तो तिलका के बाद वाले भी इस्म को देख लिया करेंगे, तो उससे भी आपको हिंट मिल जाएगी कि मुजक्कर इस्म लगा हुआ है या मोनस इस्म लगा हुआ है। ठीक है, मुजक्कर मोनस का भी आइडिया हो जाएगा, वाहिद मुसन्ना जमा का भी आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है जी। जन्नतुन है, जन्नतुन बोलता लगी हुई है, इसका मतलब है कि मोनस है, तो तिलका जन्नतुन एक की बात हो रही है, वाहिद है तो तिलका भी वाहिद। और तिलका क्या है? दूर का इशारा है, करीब का इशारा है? दूर का, मुजक्कर मोनस का। ठीक है जी। तो अब इसको मुरक्कब इशारी में कन्वर्ट करें। हाँ, तिलकल जन्नतु, माशाल्लाह, वो बाब,
وہ باغ, تل کا جنتن وہ باغ ہے, تل کا جنتو وہ باغ, ٹھیک ہے جی. چلے جی, رانے کا درسانی, درس, درس کی جمع درسانی, سبق, دو سبق. رانی کا درسانی, ہاں رانکل درسانی, ماشاء اللہ. رانک اللہ گانے, یہ 5-6 الفاظ کی کیوں میں آپ کو پریکٹس کراتا ہوں, تاکہ ایک دو سے جو ہے نا وہ ذہن میں نہیں بیٹھتا. جب تک کہ 5-6 الفاظ کی پریکٹس نہیں کرے نا, وہ کسی کو پہلے میں بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا, کسی کو دوسرے میں آئے گا, کسی کو تیسرے میں, کسی کو چھٹے میں, ہے نا. تو پریکٹس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بار غلطی, 2 بار غلطی, 3 بار غلطی, وہ بندہ پھر پہنچ جاتا ہے اس جگہ پہ, ماشاء اللہ. اور پہلے دیکھیں ایک اسم کو ہم نے استعمال کیا, پھر ہم نے اسم چینج کر دیے, اب ہم نے مکس کر دیا آگے پیچھے, مذکر مؤنث واحد دور قریب سارے مکس کر کے پریکٹس کر دی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ ایک ہی اگر سیدھی سیدھی پریکٹس کرا دیا جائے گا نا, تو پھر کبھی آپ کو یاد نہیں ہوگا, اس کے لیے بڑی سخت محنت کرنا پڑے گی. تو میں دیکھو 3 اینگل سے جو ہے نا وہ آپ کو پریکٹس کرواتا ہوں, تاکہ جو ہے نا سارے اینگل آپ کے سامنے آ جائیں اور ایک اچھی خاصی پریکٹس ہو جائے. گھر جا کے کریں گے انشاءاللہ, یا ایک بار دوبارہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اور اچھا ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوگا, رانکل درسانی. اچھا جی, اولئک احزاب, اولئک اس میں اشارہ قریب یا بعید, بعید, مذکر یا مؤنث, دونوں ہیں, مذکر اور مؤنث دونوں ہیں, ٹھیک ہے جی. اور واحد مثنیٰ جمع, جمع, ماشاءاللہ. تو احزاب, اولئک الاحزاب, ماشاءاللہ, اولئک الاحزاب. سورہ احزاب